So good morning, students. We are studying unit number 2 of renewable energy technology, that is on wind energy. That means energy generation using wind. So in the last lecture, we discussed about the basic introduction of the wind energy generation, how wind energy was used in ancient times, and how we are going to convert the energy from wind into electricity in the modern times. So for conversion of energy from wind to electricity, we use windmills or wind turbines. Those wind turbines are either horizontal verting depending upon the axis of rotor, position of the rotor. If the rotor is in horizontal position, then it is known as horizontal axis wind turbine. On the other hand, if the axis of the rotor of the turbine is in vertical position, then it is known as vertical axis wind turbine. Present day, most of the wind turbines are horizontal axis wind turbines, and we saw the images of those wind turbines in the last lecture. In today's lecture, we will consider the estimation of the power available in the wind and how much we are able to convert that power into useful energy or electricity. Before going into the details, we would like to discuss one thing, that velocity of the wind does not remain constant at the same height. That means if we measures velocity of the wind at 5 meter or 10 meter height from the ground, and we measure the wind velocity at other heights, say at 50 meter above the ground, above the surface, or 100 meter above the surface, then we will find that there is lot of difference in the velocity, and that difference in velocity occurs because of wind shear. ओके कोई डाउट तो नहीं बेटे यहाँ पे? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। कि जैसे हम आगे मूव करते हैं तो उस केस में क्या होता है, विंड की वेलोसिटी में चेंज आता है. नॉर्मली विंड की वेलोसिटी ग्राउंड पे कम होती है. इन सम बुक इट इज रिटन दैट इट इज जीरो एट द सरफेस, अर्थ सरफेस. कि अर्थ सरफेस पे जीरो होती है. ऑब्वियसली वी विल कंसीडर इट, एज्यूम इट. एंड व्हेन वी मूव अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, देन विंड वेलोसिटी चेंजेस और इट इंक्रीजेस. सो हियर इट इज रिटन at the earth's surface, wind speed is minimum or zero. It increases with height above the ground. The wind near earth's surface is retarded due to surface roughness. This is very, very important phenomena. Okay, what happens when wind is near, or when we measure the velocity or speed of the wind near the earth's surface, then there are a lot of restrictions which retard the velocity of the wind. That's why the velocity of the wind or speed of the wind near the earth's surface is minimum. Or we can say that from space we move towards the earth's surface, then there is reduction or retardation in the speed of the wind. The rate of change of wind speed with height is known as wind shear. The same concept we have studied in strength of material also, which is simply known as shear. Do you remember what is shear? कोई बता सकता है आप में से कि shear क्या चीज होती है? किसी को नहीं आता क्यों रे? All of you are in 6th semester and you are not able to answer what is shear. Okay, so if we take a block and it is placed on a surface, and we apply one force axially along the tangential to the surface, and lower portion of the block is say fixed to the ground or on the surface on which it has been placed, then when we apply force on top of the surface, then there is change in the shape and size of the body, that block. The layers of the block which is near to the object on which over which it has been placed remains in the same position, whereas the layers of the block over which we have applied the force, those layers deforms quite. ठीक है ना? तो ऊपर की जो लेयर होती है उनमें ज्यादा चेंज आता है, नीचे की लेयर में कोई चेंज नहीं आता है. इसको अपन shear बोलते हैं. Similar concept we have studied in fluid mechanics also. That term is known as viscosity. ठीक है ना? Fluid is liquid is viscous. ठीक है ना? तो उसकी जब कोई यदि रिवर फ्लो हो रही है, स्ट्रीम फ्लो हो रही है, तो उसकी टॉप की सरफेस की वेलोसिटी कम ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम रिवर स्ट्रीम के नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, उस केस में उसकी स्पीड कम होने लगती है. एंड दैट फिनोमेनन इज कंसीडर्ड एज viscosity. On the other hand, if we consider the velocity of the wind, then what happens? Since velocity of the wind as we move upward from the earth's surface is higher, and when we move toward the earth's surface, then it is lower. And this happens because the layers of the wind which are
in the bottom, those layers of the wind or air retard the motion moving of the layer of the wind just moving ahead it. ठीक है ना? तो उसकी वजह से क्या होता है, ये फिनोमेना लगभग विस्कोसिटी जैसा है, बट वी कॉल इट एज शियर। तो इसमें ये दिखाया गया है, मतलब हम इससे समझ सकते हैं कि विंड की वेलोसिटी जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं सरफेस से, उस केस में ज़्यादा होती है, और जब हम नीचे मूव करते हैं तो उस केस में कम हो जाती है। नॉर्मली जब विंड पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए हम साइट का सिलेक्शन करते हैं, उस केस में हम कुछ डेटा इस्तेमाल करते हैं, जो विंड के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जो कि साल भर के लिए अवेलेबल होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड वेलोसिटी ली जाती है विंड की, स्पीड ली जाती है, वो ली जाती है अर्थ से 10 मीटर ऊपर। दैट मीन्स we measure the or we record the speed of the wind just 10 मीटर above the surface, अर्थ सरफेस। ठीक है ना, जो भी सरफेस है, यदि हिल है तो हिल के ऊपर 10 मीटर अपन ले लेंगे, प्लेन ग्राउंड है तो उसके ऊपर ले लेंगे, ठीक है ना, डेजर्ट है तो उसके ऊपर 10 मीटर की सरफेस पे ले लेते हैं। और उसके बाद फिर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि यदि हम उससे और ऊपर मूव करते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि जो विंड टर्बाइन्स होते हैं उनका रोटर जमीन से काफी ऊपर की हाइट पर होता है। इट इज इंस्टॉल्ड एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर, 50 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर, लाइक दैट। ठीक है ना? तो हम जो विंड की वेलोसिटी रिकॉर्ड करते हैं वो अर्थ सरफेस से जस्ट 10 मीटर ऊपर करते हैं, बट वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द विंड एट द डिस्टेंस ऑन विच वी हैव इंस्टॉल्ड द रोटर ऑफ विंड टरबाइन। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक समझना बेटे? ठीक है ना? एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज विंड शियर। तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि जब हम जो विंड की वेलोसिटी मेजर करते हैं, यदि हम अर्थ की सरफेस की तरफ उसको मेजर करते हैं, पास में मेजर करते हैं, तो वो ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको ऊपर की तरफ मतलब मेजर करते हैं, अर्थ विंड की वेलोसिटी को हम अर्थ से ऊपर मूव होते हुए मेजर करते हैं, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। और चूंकि जो विंड टरबाइन रोटर होते हैं वो जमीन से काफ़ी हाइट पे होते हैं, जिसकी हाइट हो सकती है 100 मीटर भी हो सकती है, 50 मीटर हो सकती है, 80 मीटर हो सकती है। ठीक है ना? तो उस केस में विंड की वेलोसिटी वहाँ पे अलग होती है। और चूंकि विंड का पावर जनरेशन है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द विंड वेलोसिटी, दैट वी हैव सीन इन लास्ट। ठीक है ना, लास्ट लेक्चर पर ने देखा था, क्योंकि विंड में जो पावर है दैट इज बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हालांकि इसमें मोमेंटम भी होता है, मास भी होता है, एनर्जी भी होती है, फिर भी हम उसमें कन्वर्ट क्या करते हैं, ठीक है, देयर इज कन्वर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू यूजफुल इलेक्ट्रिसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ रो एम बी स्क्वायर। ठीक है ना, हाफ एम बी स्क्वायर मानो आप इसको। तो v इज वेलोसिटी। So kinetic energy of the wind changes with the change in velocity, and that's why power available in the wind also changes with the velocity of the wind. तो हम जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो विंड की वेलोसिटी में चेंज आएगा, इंक्रीज होती चली जाएगी। उसी प्रकार से यदि हम अपने विंड टरबाइन की रोटर को अर्थ सरफेस से ज्यादा हाइट पे माउंट करेंगे तो उस केस में जो पावर जनरेशन होगा वो ज्यादा होता चला जाएगा। दिस इज सिंपल फिनोमेना। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट तो नहीं बेटे यहाँ पे? आगे चलें। अभिषेक मिश्रा, रोल नंबर 5। अभिषेक मिश्रा, अनम्यूट करो बेटे अपने आप को। हाँ, बस मैं ये देखना चाहता हूँ आप लोग जागृत हो कि सो गए हो बिल्कुल से। हाँ, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा सर। ठीक है, आ ठीक रहा है, है सर। ठीक, ओके बेटे। सो द लोअर लेयर ऑफ द विंड रिटार्ड्स अबव देम। ठीक है ना, रिजल्टिंग इन चेंज इन मीन विंड स्पीड विद हाइट। अपन ने 10 मीटर हाइट पर जो विंड वेलोसिटी ली होगी, नॉर्मली वो एवरेज या मीन ली जाती है। ठीक है, वो चेंज भी होती रहती है, 5 मीटर पे अलग होगी, 10 मीटर पे अलग होगी, 20 मीटर पे अलग होगी, और 100 मीटर जिसके ऊपर हमने विंड टरबाइन के रोटर को माउंट किया होगा उसकी स्पीड कुछ अलग होगी। तो इसमें लिखा है द पावर लॉ इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ विंड स्पीड एंड हाइट। दिस इज पावर लॉ। ठीक है, इट्स स्टेट क्या होता है, v2 by v1 is equal to h2 by h1 raised to gamma, where gamma is क्या लिखा गया है इसको, विंड शियर। एंड जनरली फॉर प्लेन सरफेस gamma is taken as 0.14। ये आपको रटना पड़ेगा, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मली हमारे जो रिकॉर्ड रहता है विंड वेलोसिटी का वो कितना रहता है, 10 मीटर की हाइट पे लिया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें v1 जो विंड की वेलोसिटी है दैट हैज बीन रिकॉर्डेड यूजिंग सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट एट हाइट ऑफ 10 मीटर। तो h1 है, h1 की वैल्यू हम कितनी लेके जाएंगे, हमेशा 10 मीटर लेके जाएंगे। और जो गामा यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि विंड शियर है, उसकी वैल्यू कितनी लेके जाएंगे, 0.14।
याद रहेगा, ठीक है ना, सिंपल फॉर्मूला, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन इसमें नहीं है। सपोज यू वांट टू कैलकुलेट, सपोज 10 मीटर हाइट पे विंड की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, फॉर एन एग्जांपल, ठीक है ना, एट हाइट ऑफ 10 मीटर द विंड स्पीड हैज बीन रिकॉर्डेड as 5 meter per second. If we want to calculate the height of wind, speed of wind at height of 100 meter, तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V2 मतलब V100 इज इक्वल टू H2 कितना लेना पड़ेगा, 100 लेना पड़ेगा, H1 कितना होगा, 10 हो जाएगा, और इसका पावर कितनी लेनी पड़ेगी, 0.14, और V1 हमने माना कितना है, 5 है। तो बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप, ठीक है ना, वी कैन कैलकुलेट the speed of the wind at particular height. One thing is important here, this statement is very, very important. This is an engineering approximation. This power law is an approximation and it must be used with caution. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि फ्लैट ग्राउंड है उस केस में गैमा की वैल्यू कुछ अलग होती है, यदि हिल्स होती हैं या कोई और दूसरे ऑब्स्ट्रक्शंस जैसी चीजें होती हैं उस केस में गैमा की वैल्यू चेंज होती रहती है। सो सर्टेन ऑब्जर्वेशंस आर अवेलेबल, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी विल चूज द वैल्यू ऑफ गैमा और विंड shear, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, the value of gamma is taken as 0.14 and that is wind shear. So suppose we want to install a wind turbine at height of 50 meter or 60 meter or 70 meter. This is dependent how much wind energy we want to harness in the form of electricity. ठीक है ना, कि हमें पता है कि 10 मीटर हाइट पे विंड की वेलोसिटी कितनी होगी, then using the formula we can calculate the power available in the wind, and using the formula we can calculate how much power is going to be converted, wind power is going to be converted into electricity. तो आप चाहते हो कि आप मैक्सिमम लो, तो उस केस में हमें ज्यादा हाइट पे जाने की कोशिश करेंगे, बट जितनी हाइट पे हम रोटर को माउंट करते हैं उस केस में उस रोटर के लिए जो फ्रेम हमें डिजाइन करना पड़ता है, उसमें जो सिविल वर्क इन्वॉल्व होता है, उसमें जो दूसरे एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं वो काफी कॉस्टली हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपनी जो पूरी की पूरी यूनिट होती है, वी हैव टू माउंट दैट कंप्लीट यूनिट एट दैट मच हाइट। यदि हम 100 मीटर हाइट ले रखे हैं, यू कैन इमेजिन 100 मीटर हाइट मींस मोर देन 300 फीट, यदि उतनी ऊंचाई पे हम विंड टरबाइन को माउंट करेंगे तो पावर जनरेशन की जो डिवाइसेस हैं हमको वो ऊपर ही माउंट करनी पड़ेंगी। उस केस में जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और जो कैलकुलेशंस होते हैं वो काफी कठिन हो जाते हैं। इसलिए हम निकालते हैं कि हम 50 मीटर पे हाइट पे माउंट करें तो हमकी कितनी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी, 60 मीटर हाइट पे यदि हम विंड रोटर लगाते हैं तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी, उसके अनुसार ही निकाल सकते हैं। So that's why this formula is very, very important. This is an engineering approximation. This power law is an approximation and it must be used with caution. यदि फ्लैट सरफेस है, ये जैसे ग्राउंड है, अपना प्लेन ग्राउंड है जहाँ पे हम विंड मिल इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उस केस में गैबा की वैल्यू जनरली कितनी ली जाती है, 0.14। यदि कोई जंगल के अंदर अपन ने माउंट किया जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन, बड़े बड़े पेड़ हैं, पहाड़ियां हैं, तो उस केस में गैमा की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी। ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं यहाँ पे बेटे, समझ में आ गया? ठीक है, आप लोग अपनी अटेंडेंस भी डाल दीजिए चैट बॉक्स में। नेक्स्ट, नाउ दिस इज न्यूमेरिकल, यू कैन नोट डाउन। फॉर अ सजेस्टेड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट द मेन विंड स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड एट 10 मीटर इन डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट जगह है जहाँ पे विंड मिल को हमको इंस्टॉल करना है, विंड टरबाइन इंस्टॉल करना है, और वहां पे जो रिकॉर्ड की गई वैल्यू दैट इज एट हाइट ऑफ 10 मीटर द विंड वेलोसिटी और विंड स्पीड इज 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द विंड स्पीड एट 10 मीटर 80 मीटर हब हाइट, हब मींस हब ऑफ द जनरेटर। ठीक है ना, तो यू कैन यूज द सेम पावर लॉ, जो पावर लॉ अपन को यहाँ बताया गया आप उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ गामा और विंड shear इज नॉट सजेस्टेड हियर बट यू कैन assume it 0.14. So when you put the value H2 equal to 80, V1 is equal to 4 and H1 is equal to 10, you can determine the value of the V2 or velocity of the wind at height of 80 meter. So आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी है, ये मैंने कहीं बुक से लिया, आई हैव नॉट कैलकुलेटेड इट बट यू कैन चेक इट। एक मिनट में आपको टाइम दे रहा हूं चेक करने के लिए, चेक कर लो इसको आप। सिंपल कैलकुलेशन इज देयर, चेक करके बताओ कि आंसर सही है कि नहीं है। विशाल गोयल, रोल नंबर 116।
यस सर। आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। सर अभी देखो करके देखो, सिंपल कैलकुलेशन है इनके। चलो चेंज बता देना मुझे, इनके कोई चेंज आता तो बता देना, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि 10 मीटर हाइट पर जो बिंड की वेलोसिटी है, स्पीड है, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। आपको कंफ्यूज तो नहीं होती कि मैं कई बार वेलोसिटी बोलता हूँ, कई बार स्पीड बोलता हूँ? एक्चुअली बोथ आर सेम थिंग। सेम। वेलोसिटी इज क्या होता है? वेलोसिटी क्या है? जिसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, बिकॉज डायरेक्शन के बगैर हम फिर नहीं कर पाएंगे, तो हम उसको वेलोसिटी बोल सकते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द बुक्स इट इज रिटन एज स्पीड। ठीक है, स्पीड मतलब जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जब हम पावर जनरेशन के लिए जाते हैं तो विंड टरबाइन को हम उसी डायरेक्शन में माउंट करते हैं, लगाते हैं जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो होती है या ब्लो होती है, ठीक है ना। इसलिए उसको वेलोसिटी बोलना ज्यादा ठीक होगा, बट इन सम बुक्स इट इज रिटन एज स्पीड, सो वी कैन कंज्यूम इट, वी कैन कंसीडर इट एज स्पीड आल्सो। ओके ये सर। सिंपल फॉर्मूला था जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, now we have to estimate the power available in the bin. So in the last slide, in the last lecture, we have seen that power available in the bin is in the form of kinetic energy, and formula is E equal to half mv square, where m is the mass and v is the velocity or speed of the wind. ठीक है ना? Now we have to consider the mass, but that mass is considered which is contained in this control volume. अब एक concept आता है, what is control volume? आप लोग कोई समझा सकते हो क्या चीज होती है कंट्रोल वॉल्यूम? बता सकता है आप में से कोई कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या होता है, सपोज यहाँ बीच में कहीं पे यहाँ पे विंड टरबाइन माउंट किया गया है, ठीक है, और हमारी जो विंड ब्लो होगी वो टरबाइन के फेस से आएगी। अभी है, मैं करवा, ठीक है ना। तो कंट्रोल वॉल्यूम में क्या देखना पड़ता है कि जो विंड वेलोसिटी विंड रहती है, वो विंड ये रोटर के ब्लेड से स्ट्राइक करेगी, ठीक है ना। इसकी यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, और ये जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे विंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी, वो इसको स्ट्राइक करेगी, और ठीक है ना, और इसमें अवेलेबल टर्बुलेंस की वजह से इसको विंड रोटर को रोटेट करेगी, इसके बाद एग्जिट होगी यहाँ पे। तो जब ये विंड यहाँ से एग्जिट होगी, उस केस में इसकी स्पीड सेम रहेगी या बदलेगी कुछ? बता सकता है आप में से कोई? मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया कि यदि बीच में यहाँ पे टरबाइन है, रोटर है, ब्लेड लगी हुई है यहाँ पे विंड की वेलोसिटी ज्यादा है, जब ये विंड यहाँ से पास होगी, ठीक है ना, तो क्या उसकी वेलोसिटी सेम होगी या बढ़ेगी या कम, माने घटेगी, कम होगी? सर कम हो जाएगी। सर अगर सरफेस एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। और घटेगी क्यों? कौन बोल रहा था घटेगी? अरे घबराओ नहीं, मुकेश बोल रहा था क्या? मुकेश बबार? नहीं सर, सत्यम कुशवाहा। सत्यम कुशवाहा ने बोला, उसने 100% सत्य बोला है। क्यों सत्यम चुप चुप क्यों हो गए? क्या होता है? थोड़ा थोड़ा डाउट था सर। डाउट वाली स्थिति नहीं है। देखो यहाँ पे विंड की जितनी वेलोसिटी है, जब ये इसके ऊपर वर्क करेगी तो क्या है, तो विंड टरबाइन की ब्लेड को रोटेट करने के लिए जो एनर्जी मिल रही है वो विंड ही तो दे रही है, और कुछ नहीं दे रहा वहां पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी स्पीड ज्यादा होगी, और जब ये क्रॉस करके इस विंड रोटर से आगे जाएगी तो इसकी स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाएगी, ठीक है ना। हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये जो वेलोसिटी, सपोज ये 5 मीटर पर सेकंड है, और जब ये विंड रोटर से आगे निकले तो ये 0 होनी चाहिए आइडियली। उस इन दैट केस वी आर गोइंग टू कन्वर्ट 100% पावर अवेलेबल इन द विंड, बट दैट इज नॉट द पॉसिबल केस। वो अपन आगे अभी इसी प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि विंड में अवेलेबल एनर्जी का एक निश्चित परसेंटेज हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं, ठीक है ना। सो दैट इज अ डिफरेंट इश्यू। सो नाउ वी वांट टू वी आर सीइंग that how much energy is going to be converted from wind to useful electricity and how it is going to be converted. Obviously हम यहाँ पर टरबाइन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें कुछ रोटर ब्लेड्स लगी हुई हैं। रोटर ब्लेड्स रोटेट होंगी किसके द्वारा? विंड के द्वारा वो रोटेट होंगी, वो जनरेटर पर, उनके थ्रू हम हब या जनरेटर को रोटेट कराएंगे एंड वी विल स्टार्ट जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो ये फॉर्मूला अपन कल भी देख चुके थे यहाँ पे, ठीक है। अवेलेबल पावर एंड एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कैलकुलेटेड लाइक दिस, तो E is equal to half rho A V Q. When you put the value of A क्या होता है? It is the area, ठीक है, pi r square. So it can be written as power available in the wind or energy available in the wind. ये मैक्सिमम एनर्जी है जो हम उसमें हार्नेस कर सकते हैं, दैट इज हाफ रो पाई आर क्यू वी क्यू।
where rho is density, r is radius of the wind turbine blade and v is the wind velocity. ठीक है, तो ये तो अपन कल ही देख चुके थे, इसमें कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, नाउ wind energy extraction, that is important. ठीक है, so three basic principles of physics are often used while studying wind energy extractions. ठीक है, conservation of mass, conservation of energy and conservation of momentum. ठीक है, क्या सिद्धांत बोलते हैं? तीन सिद्धांत काम कर रहे हैं. कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि कंट्रोल वॉल्यूम से जितना विंड का मास फ्लो हो रहा है या जितना रोटर ब्लेड पे आ रहा है, ठीक उतना ही मास बाहर निकल के जाएगा. ठीक है ना, एग्जिट होगा. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होगा कि टोटल अवेलेबल एनर्जी जो है विंड की, रोटर ब्लेड के पहले जितनी थी, बाद में निकलने के बाद जो बची हुई है और बीच में उसने ब्लेड ने जो एक्सट्रैक्ट की है, सो अवेलेबल एनर्जी इन द विंड इज इक्वल टू समेशन ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी प्लस रिमेनिंग एनर्जी अवेलेबल इन द विंड विच इज outgoing through the wind turbine blades. And conservation of momentum, momentum का मतलब ये होता है, momentum क्या होता है? mass into velocity. तो वो constant बना रहता है वहां पर, वो change नहीं होता है. तो the conservation principle must be applied in a defined control volume. control volume का मतलब जो मैंने पहले आगे भी देखेंगे, ये वाला वॉल्यूम जो अपन कंसिडर करेंगे जिसको अपन कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं. ठीक है, the right and left side of the equation must be referring to the same control volume. मतलब एक ही वॉल्यूम के अंदर पर देखेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड, उसमें क्या होगा, बीच में अपन रोटर ब्लेड को रखेंगे, लेफ्ट साइड में जो विंड अवेलेबल है उसका डेटा लेंगे और राइट साइड और ब्लेड की राइट साइड जो अवेलेबल विंड है उसका अपन डेटा लेंगे. ठीक है, इन अ डेरिवेशन एज वन मूव्स फ्रॉम वन इक्वेशन टू अनदर, ऑल द इक्वेशन मस्ट रेफर टू द सेम कंट्रोल वॉल्यूम. दिस इनिशियल कंट्रोल वॉल्यूम मे बी ऑफ एनी शेप. शेप कुछ भी हो सकती है, ये देख लो यहाँ पर कंट्रोल वॉल्यूम है. तो इन्होंने कंट्रोल वॉल्यूम कौन सा लिया? सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक का. यहाँ पे कुछ आपको वैल्यू दिख रही होंगी, A0, A2, AR. ठीक है, ये किसके लिए? क्रॉस सेक्शनल एरिया जो अपन को इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो ये विंड चूंकि क्या होता है, ये स्ट्राइक करती है विंड टरबाइन रोटर ब्लेड से. ठीक है ना, तो उसके इसमें ये तिरछा लिया गया है, ये ऊपर की स्ट्राइक करके ऊपर की तरफ निकल के चली जाएगी. तो यहाँ पे जो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कम लिया गया है, यहाँ पे कुछ रोटर का अपना एरिया है जो चेंज नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ ज्यादा लिया गया. बट एक चीज है कि जब ये बाहर निकलेगा तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे A2 इज ग्रेटर देन A0. ठीक है, एंड V2 इज लेस देन V0. यहाँ पे क्या हो रहा है? देयर इज रिडक्शन वेलोसिटी. V0 इज मच हायर देन VR एंड सिमिलरली VR इज हायर देन V2. क्योंकि इसमें अवेलेबल जो एनर्जी है उसका हमने यूज किया है किसको रोटेट कराने के लिए? विंड टरबाइन ब्लेड को रोटेट कराने के लिए इस्तेमाल किया है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो विंड की वेलोसिटी होगी जो उसको एग्जिट करेगी, लीव करेगी, वो कम होगी, बट क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे ज्यादा होगा. ठीक है, सो कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, एयर एंटर्स एट D0. These are the assumption. Air leaves at A2. Fluid flow is streamlined and so there is no loss of mass from the surface of the control volume. Fluid is incompressible. This is very important assumption because we are considering that there is no change in the density of the air. Air की density के ऊपर actually ये बहुत बड़ा phenomena है जो अपन बहुत short में पढ़ रहे हैं. There is change in density of the air. ठीक है ना, and that density changes according to different parameters. टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, मैंने सनराइज जब होता है तो उस केस में डेंसिटी कुछ अलग होती है. जब सन बिल्कुल 12 बज जाते हैं नून टाइम, तो उसमें एक एयर डेंसिटी अलग होती है. ठीक है ना, यदि मॉइस्चर अवेलेबल है तो एयर डेंसिटी अलग हो जाती है. तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फेनोमेना, बट वी आर एज्यूमिंग, हम एक एजम्पशन यहाँ पे ले रहे हैं कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड मीन्स एयर इज इनकम्प्रेसिबल, दैट मीन्स there is no change in the density. ठीक है, so this is very important phenomenon. Under these assumptions, conservation, according to conservation of mass, whatever amount of mass which is entering into the blade, that will remain the same, which is exiting the blade also. So A0, rho, A0, V0, rho density, A0 area, V speed. So per unit time यदि अपन इसको देखें, this becomes the volume, and when we multiply volume into density, it becomes mass. So rho A0 V0 is equal to rho AR VR.
ठीक है ना, रोटर ब्लेड पे लिया गया है ये, एंड रो A2 B2 एग्जिट पे लिया गया है, और रो को हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है, तो ये दिखाता क्या है कि डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, डेंसिटी ऑफ द बेंड इज यूनिफॉर्म, ठीक है। Since the rotor turbine is extracting energy from air, the kinetic energy of air will reduce, so V0 will be greater than VR and will be greater than V2, जो अपन पहले से डिस्कस कर चुके हैं। According to conservation of energy, total energy is equal to kinetic energy plus pressure energy plus potential energy. Kinetic energy मूविंग की वजह से है, प्रेशर एनर्जी प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी पर्टिकुलर हाइट पे है, अलग अलग हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होती चली जाएगी। The kinetic energy is because of the directed motion of the fluid or bend. Pressure energy is because of the random motion of particles in the fluid, and potential energy is because of relative position of the fluid. अब इसमें क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, चूंकि हम एक ही हाइट पे इसको लेके चले जाते हैं तो वो कांस्टेंट होती है, इसलिए आपको यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं दिख रही होगी, अदरवाइज दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड P इज द प्रेशर हेड और प्रेशर एनर्जी, सो दिस मच रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि यदि अपन इक्वेट करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड को, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी सेम हाइट पे ली गई है तो बराबर रहेगी, इस वजह से इसमें कोई चेंज यहाँ पे नहीं किया। सो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन एज दिस, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास एंड मूवमेंट एंड विंड टरबाइन, यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई किया है, विच स्टेट दैट अलोंग अ स्ट्रीम लाइन व्हेन स्पीड इंक्रीजेज, ठीक है, जब स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा, एंड व्हेन स्पीड डिक्रीजेज देन प्रेशर इंक्रीजेज, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन प्रेशर इज गवर्न्ड बाय द क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप, जो आप पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हो। द बर्नौलीज लॉ कैन बी अप्लाइड फ्रॉम A0 टू द लेफ्ट ऑफ द रोटर, ठीक है ना, ये लेफ्ट है, यहाँ से यहाँ इस एरिया में अप्लाई किया, एंड देन फ्रॉम राइट टू द रोटर ऑफ द A2। इस रोटर ब्लेड के लेफ्ट से यहाँ पे भी अप्लाई किया गया है, और रोटर ब्लेड के राइट से भी यहाँ पे अप्लाई किया गया है। रोटर ब्लेड में जहाँ पे बेंड की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी और बेंड रोटर को रोटेट कर रही होगी, वहाँ पे अप्लाई नहीं किया गया। बर्नौलीज लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड अक्रॉस द डिवाइस, ठीक है, ये लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा है, इट कैन नॉट बी अप्लाइड अक्रॉस द डिवाइस दैट एक्सट्रैक्ट एनर्जी, ठीक है ना। तो ये देखते हैं अपन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन द फॉलोइंग assumptions आर रिक्वायर्ड, देयर आर नो शियर फोर्सेस इन द x डायरेक्शन, x डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन दिखाई गई है, ठीक है ना, दिस इज x डायरेक्शन, नो शियर फोर्स इन द x डायरेक्शन, द प्रेशर फोर्स ऑन A0 एंड A2 आर इक्वल, ठीक है, pressure force. There is no momentum loss or gain other than from A0 and A2. The equation of Newton's second law along the axis becomes, कोई इसमें लगा नहीं है, चलो दिखा देते हैं। इसके बाद जब हम इसको एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, then because of change in momentum in the control volume there must be external force acting, ठीक है, because of change in momentum in the control volume there must be external force acting, and that force is applied by the wind. In this case rotor provides the external force, ठीक है। ये थोड़ा सा बेंड को जो फोर्स रहता है, बेंड प्रोवाइड फोर्स टू द रोटर एंड देन रोटर जनरेट्स द electricity. Because wind is exerting a force on the rotor, there must be a pressure difference across the rotor equal to the force divided by the area of the rotor. Since the rotor hinders the flow of air, the pressure at the front of the rotor, सामने की तरफ, ए आर यहाँ पे रोटर है, A0 वही फिगर बनाया जो अपन पहले से देखते वही बना हुआ है, कंट्रोल वॉल्यूम ऐसा इनने बना दिया है, यहाँ पे अपन ने सीधे ऐसे बनाया था, इनने ऐसे बना दिया है। So since the rotor hinders the flow of air, the pressure at the front of the rotor P0R is higher, ठीक है, and then the free stream pressure P0, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है। The pressure at the back surface of the rotor P2R2 below the free stream pressure. अब ये हल्का सा सिद्धांत बताया गया कि कैसे कैसे विंड एनर्जी एक्सट्रैक्ट अपन कर सकते हैं। इसके कुछ फॉर्मूले और हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, क्योंकि टाइम अभी कम हो रहा है। बट हियर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू बेड्स लिमिट। अब बेड्स कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, जर्मनी के थे, फिजिसिस्ट थे बेसिकली, जिन्होंने बताया था कि मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी इन द विंड, ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द एनर्जी अवेलेबल इन द विंड विच कैन बी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी।
तो क्या लिखा है कि यहाँ पे जितनी भी अवेलेबल इलेक्ट्रिक विंड के पास एनर्जी दैट इज 100%, व्हेन इट पासेस थ्रू दिस, ठीक है, तो विंड एनर्जी स्पिल्ड 50.7%। क्या मतलब क्या हुआ? इसमें लिखा है कि हम जो अवेलेबल एनर्जी है उसका कुल 59.3% मैक्सिमम ही कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका अपन एक देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट दिस कंसेप्ट इज नोन एज दिस लिमिट इज नोन एज बैड्स लिमिट बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ठीक है, तो यूजिंग सिंपल concept of conservation of mass, momentum, energy, Bads postulated that a wind turbine with a disc-like rotor cannot capture more than 59.3% of energy contained in a mass of air. ठीक है, तो आज की क्लास में इतना। अब आपका टाइम खत्म हो रहा है। आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज अपन मीटिंग को खत्म करते हैं। एनी क्वेश्चन? देखो अभी थोड़ी थ्योरी लगेगी आपको यहाँ पे, इसको समझना पड़ेगा, लेकिन फिजिक्स जैसी कुछ थ्योरी है यहाँ पे। हो सकता है आपको कुछ कठिन फील हो रहा हो, तो मैं आपको नोट्स तो दूंगा, आप चाहें तो इनकी स्क्रीनशॉट भी बीच बीच में ले लिया करो वहां पे। मीटिंग एंड करें बेटे, आप लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दिया आप लोगों ने? यस सर। चलो, तो हम मीटिंग यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सर। ओके बेटे।